Good morning to all. I'm audible. Yes, sir. Good morning. So now we are going to start next chapter, that is laminar flow. Okay. So if we talk about laminar flow, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि laminar flow होता क्या है. I think we have already discussed that what do we understand by the concept of laminar flow. Yes. What is that? क्या है laminar flow? Yes. Anyone from you? What is laminar flow, guys? Hmm. Laminar flow is basically viscous flow. It is the streamlined flow, the flow can travel in the layers that we have. That is known as basically laminar flow. Now, in case of laminar flow, we have already discussed that the flow will be first of all along the streamlines. That the flow will be along the streamlines. There will not be intermixing of layers. Okay, intermixing of layers, viscosity the predominance, viscosity the predominates, velocity is less, velocity ज़्यादा इसमें नहीं होती. ठीक है, that simple we have is the streamline flow. ठीक है, that simple we have is the streamline flow, right? So write down in laminar flow the fluid will move in the form of layers. In laminar flow the fluid will flow in form of the layers. Each layer slides over the other. Each layer slides over the other, and will not be there will not be any intermixing. There will not be any intermixing of these layers, and there will not be any intermixing of the layers. Thus shear force is mainly due to viscosity. Thus shear force is mainly due to viscosity. ठीक है, अब लैमिनार फ्लो को अगर आपने कहते पता करना हो दैट वेदर इट इज लैमिनार और वेदर इट इज बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो, तो हम उसको किससे पता करते हैं? इफ यू वांट टू Reynolds number, right? If you want to check that whether the flow is laminar or not, then we used to check it with the help of Reynolds number. ठीक है, Reynolds number क्या है? रो डी वी डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी. ठीक है, तो रो क्या है आपको पता ही है. रो इज डेंसिटी, डी इज बेसिकली डायमीटर, वी इज द वेलोसिटी एंड न्यू इज डायनामिक विस्कोसिटी, और यू कैन सिंपली से दैट डी बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ठीक है, दैट सिंपल वी हैव. नाउ इफ वी हैव, अब देखो रेनॉल्ड्स नंबर से हम जज तो कर पाते हैं, लेकिन कैसे? फर्स्ट वन वी हैव इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप. In case of the flow through pipe, okay, flow through pipe में
in case of the flow through pipe, इसमें सबसे पहले क्या आता है कि अगर आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर is less than 2000, then we have laminar flow. If Reynolds number is between 2000 to 400, then we have the transitional flow. And if Reynolds number is more than 4000, then we have turbulent flow. Right? These are the different types of the flow. In case of the pipe, in case of the pipe. Now, if a flow is through the plates, now we have the parallel कहते plates, उनके बीच में से हमारे पास अब निकल रहा है अपना पानी, ठीक है। इस केस में अब रेनॉल्ड्स नंबर अलग हो जाते हैं। If Reynolds number is less than 1000, then we have laminar flow. If Reynolds number is in between 1000 and 2000, then we have the transitional flow. Okay, and if Reynolds number is more than 2000, then we have turbulent flow. Then we have turbulent flow. Okay, that is in case of the plates. लिख लिया? Next we have in case of open channels. Next we have in case of open channels. Now, when we have open channel, Sir, previous slide. now we have is open channel. In that very particular case, if Reynolds number is less than 500, then we have laminar. If Reynolds number is in between 500 and 2000, then we have transitional. And if Reynolds number is more than 2000, then we have turbulent. And at last, if we have through the soil, इसमें क्या कहा जाता है? If Reynolds number is less than 1, then we have laminar. If Reynolds number is between 1 to 2, then we have transitional. And if Reynolds number is more than 2, then we have turbulent. ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग इनके पैरामीटर्स हैं, आपको याद रखना। अक्सर लोगों को होती है कंफ्यूजन कि वो लोगों से यही याद रहता है मेनली पहले वाला, दैट इज बेसिकली 2000 एंड 4000, तो वो समझते हैं कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं, दिस इज ओनली फॉर द सर्कुलर पाइप्स, नॉट एवरीवेयर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर गाइस? यस सर। चलो, अब हमें यहाँ पर अलग अलग क्या बोलते हैं केसेस जो हैं वो डिस्कस करने हैं। फ्लो थ्रू, हमें दो तरह के केस हमें यहाँ पर मेनली कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज बेसिकली फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप एंड सेकंड वी हैव इज फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप एंड सेकंड इज फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स। डेरिवेशन हम इसके यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई विल सिंपली लेट यू नो द फाइनल रिजल्ट्स क्या है उसके, कि आपके रिजल्ट्स है क्या फाइनली। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आता है फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। ठीक है ना, मींस वी हैव सर्कुलर पाइप लाइक दिस। ओके,
सर्कुलर पाइप में this is basically a circular pipe. In this very particular case, capital R is radius of the circular pipe. ठीक है, like this. अब इस केस के अंदर आपके पास सबसे पहली जो आती है टर्म, that will be shear stress. सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, that will be shear stress. ठीक है, shear stress का फॉर्मूला सबसे पहले जो क्या है, माइनस कर्ल P बाय कर्ल X into R by 2. Minus curl P by curl X into R by 2 is the first formula that you guys need to understand. इसमें कहते हैं कर्ल P का मतलब क्या है? Pressure. हाँ जी, प्रेशर ड्रॉप, that is drop of the pressure. ठीक है ना? तो कर्ल P simply means the change in the pressure which is equal to P2 minus P1. ठीक है ना? P2 वाला पहले लेना है, P2 minus P1 that we have is curl P. And what is curl X? The length, along the length. Along the length. ठीक है ना? That means X2 minus X1. So we used to call this term as the pressure gradient. Okay, this is known as the pressure gradient. Okay, next is R. Now R is basically radius from center. ठीक है, आप जिस भी पॉइंट पे रेडियस अपना फाइंड कर रहे हो वहां पे आपके पास आ जाएगा. ठीक है, that we have is shear stress variation. Now let me know that whether this variation of shear stress is linear or parabolic. Linear. Linear. ठीक है, and maximum आपको shear stress कहां पर मिल रहा है? सर मैक्सिमम मिलेगा टॉप एजेस पे सर. That is basically boundaries. ठीक है, बाउंड्री सर. बाउंड्रीज पे आपको मिलेगा अपना shear stress maximum. ठीक है, तो shear stress डायग्राम जो बनेगा that will be something like that. Okay, that will be something like that. And this we have is shear stress variation, and this maximum tau क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस कर्ल P बाय कर्ल X into capital R by 2. ठीक है, that simple we have in this very particular case. Clear guys? shear stress की वेरिएशन. ठीक है, वो पूछ सकता है कभी कभी shear stress की वेरिएशन बताओ. Clear? Yes or no? यस सर. चलो, next we have is velocity distribution. Velocity distribution. Now, if we talk about velocity distribution in case of laminar flow, the formula is U is minus 1 by 4 nu curl P by curl X capital R square minus small r square. ठीक है, U is equal to minus 1 by 4 nu कर्ल P by कर्ल X capital R square minus small r square. और ये आपको पता ही है this is basically is dynamic viscosity. ठीक है, ये क्या है, ये डायनामिक विस्कोसिटी है. ठीक है, बाकी आपको पता ही है कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द पाइप एंड द स्मॉल r इज दैट वेरी पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पर आप अपनी वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हो. वी बेसिकली आर फाइंडिंग द वेलोसिटी. अब बताइए इसकी वेरिएशन कैसी है, लीनियर और पैराबोलिक? पैराबोलिक. पैराबोलिक वेरिएशन. मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? सेंटर. जीरो कहां पर है? सर बाउंड्रीज पे. आपको देखिए यहाँ पर, अगर मैं इस जगह में अपना स्मॉल r को कैपिटल R पुट करता हूँ, स्मॉल r को ऊपर वाली इक्वेशन में कैपिटल R पुट करता हूँ, मींस इफ आई वांट टू फाइंड द वेलोसिटी एट द बाउंड्रीज, तो वहां पर वेलोसिटी कितनी है? जीरो. वेलोसिटी बेसिकली इक्वल टू जीरो. एंड अगर मेरे को यहीं पर स्मॉल r की वैल्यू में जीरो पुट कर दूं, स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, जीरो पुट कर दूं, मींस मैं अपनी वेलोसिटी जो है वो कहां पर फाइंड कर रहा हूं?
सेंटर पे फाइंड कर रहा हूँ, तो वहां पर मैंने क्या किया, स्मॉल आर की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी, ठीक है। अब इन दैट वेरी पर्टिकुलर केस माई यू विल बी -1 बाय U max. 4 न्यू कर्ल पी बाय कर्ल एक्स, सिर्फ कैपिटल आर स्क्वायर। तो वेदर इट इज मैक्सिमम, yes it is basically maximum Maximum. u, it is basically u maximum, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे कि वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप उसको इस फॉर्मूला से निकाल के दे सकते हो, ठीक है, बाय जस्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द स्मॉल r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी हैव कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u जो है वो आपकी कहां मिल रही है, दैट यू आर बेसिकली गेटिंग एट सेंटर विद पैराबोलिक वेरिएशन। पैराबोलिक क्यों है, बिकॉज इट वेरीज बेसिकली विद r की पावर 2, ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी हैव बेसिकली पैराबोलिक वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन यहाँ पर नहीं है, ओके। और u max यहाँ पर आपको मिलता है, उसका फॉर्मूला हमने पीछे अभी देख लिया, दैट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ u max दैट वी आर जस्ट बेसिकली डिस्कस्ड। क्लियर गाइस, कोई डाउट है तो पूछिए। चले आगे, Yes, sir. चलो। तो आपके पास u max भी आ गया एंड u भी है, यू हैव u max एंड u। अब इस केस के अंदर अगर आपको बोले कि रेशियो बताओ u और u max के बीच में, बता सकेंगे हम लोग, इजी है। u हमको पता ही है -1 बाय 4 न्यू कर्ल p बाय कर्ल x कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। एंड हमको u max ही पता है -1 बाय 4 न्यू कर्ल p बाय कर्ल x जस्ट कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये बाकी सारा तो आपका कट ही जाएगा, ये सारा तो कट गया आपके पास, तो बचा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और u डिवाइडेड बाय u max इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R होल स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी ऐसे वो सिंपल फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है कुछ नहीं इसमें, आपको u और u max का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिकली आपको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट बेसिकली इज u ऑफ योर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां से आप बाकी भी निकाल सकते हो, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. चलो, अब इसमें एक चीज और होती है, दैट इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी। ये तो हमने निकाली मैक्सिमम वेलोसिटी ना, दैट इज u max, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन एक हमको निकालनी होती है एवरेज वेलोसिटी, मींस कहीं पर जाके वेलोसिटी विल बी बेसिकली एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी हम लोग ऐसे निकालते कैसे हैं, u एवरेज u बार, एवरेज वेलोसिटी हम लोग बेसिकली निकालते कैसे हैं, आप पहले फाइंड करते हो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को करते हो कहते हैं डिवाइड बाय एरिया, देन वी हैव इज एवरेज वेलोसिटी। ये वैसे वे होता है इसकी डेरिवेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द डिस्चार्ज, फिर आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है एरिया से, देन फाइनली वी हैव बेसिकली इज एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर हम डेरिवेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो डायरेक्टली राइट डाउन द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दैट u बार इज -1 बाय 8 न्यू कर्ल p, इसका माइक ऑन है प्लीज, कर्ल p बाय कर्ल x into capital R square, ठीक है। that we have is a formula for the average velocity, -1 by 8 nu curl p by curl x and capital R square। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ तो लिख लिया गाइस, यहाँ तो लिख लिया, Yes, sir. चलो। यहाँ पर आपको एक चीज जो नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है, दैट रेशियो ऑफ u max एंड एक मिनट u max एंड u average, वो रेशियो कितनी है, u max का आपको पता है -1 बाय 4 न्यू कर्ल p बाय कर्ल x कैपिटल आर स्क्वायर। आपको u बार भी पता है -1 बाय 8 न्यू कर्ल p बाय कर्ल x कैपिटल आर स्क्वायर। सब कुछ तो कट गया, तो आंसर क्या है इसका, ये कर्ल p कर्ल x जो भी है कट गया, सब कुछ हो जाएगा, आंसर विल बी 2।
आंसर विल बी 2। ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट रेशियो ऑफ यू मैक्स यू बार इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप्स और वी कैन से लैमिनार के फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, वहां पर ही आपके पास ये 2 है, ठीक है। लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, वहां पर ही आपके पास क्या है, ये 2 है, ठीक है? आपको चीज को याद रखना, क्लियर, ठीक है। चले आगे। Yes, sir. चलो, नेक्स्ट वी हैव is the pressure drop. Next we have is the pressure drop. Pressure drop is basically simply होता है आपके पास कि कर्ल पी मेरा कितना, प्रेशर कितना आपका क्या किया, कहते हैं ड्रॉप किया, विच इज P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 कितना कहते हैं क्या है कि द प्रेशर हैज बीन बेसिकली ड्रॉप्ड। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 32 न्यू यू बार 32 हवा, इट इज बेसिकली द प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। चेंज नहीं हम लेके चल रहे, प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। 32 न्यू यू बार एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। 32 न्यू बार मींस एवरेज वेलोसिटी into length divided by d square, that we have is the pressure drop. And in case of the pressure drop, this basically is simply the pressure drop. अगर मुझे फाइंड करना हो head drop, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? This is the pressure drop. If I want to find the head drop, तो कैसे फाइंड करेंगे? Divided by specific weight. Divided by rho g, ठीक है, स्पेसिफिक वेट। ओके, सो डिवाइडेड बाय हम कर देंगे, तो हम लोग rho g से इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, ठीक है। एंड ये जो आपको इक्वेशन मिलती है, दिस इक्वेशन फाइनली इज नोन एज हेगन-पॉइज़न इक्वेशन, ठीक है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, अलग अलग पेपर्स में, कि लैमिनार फ्लो में कौन सी इक्वेशन यूज होती हैं, तो आपके पास वो 4 इक्वेशन दे देंगे, आपको एक याद रखनी है, दैट वी हैव इज हेगन-पॉइज़न इक्वेशन, ठीक है। क्लियर? डाउट है तो पूछिए। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है, प्रेशर ड्रॉप इन द रियलिटी, जब आप इसको यूज करोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, स्पेशली इन केस ऑफ इंक्लाइंड पाइप्स, वैसे तो इंक्लाइंड पाइप पेपर में आने का चांस नहीं है, बट फिर भी आ जाए, सो दिस शुड बी इन रियलिटी पीजोमेट्रिक ड्रॉप। पीजोमेट्रिक ड्रॉप होना चाहिए ये, जब आप इसको फॉर्मूला में पुट करोगे, दिस शुड बी एक्चुअली द पीजोमेट्रिक ड्रॉप। और पीजोमेट्रिक के ड्रॉप के अंदर, इसके अंदर हम लोग 2 चीज ले लेते हैं, कहते हैं प्रेशर एंड डायटम। इंक्लाइन पाइप होगा तब आपको ऐसा करना है, बिकॉज इन केस ऑफ कहते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप, डायटम तो आपका वैसे ही सेम है, ठीक है, तो वहां फर्क नहीं पड़ता। बट इन केस ऑफ इंक्लाइन पाइप, तो आपको वहां पर डायटम लेना होता है, तो इट इज बेटर कि आप इसको पीजोमेट्रिक के नाम से ही जाने हमेशा ही, ये पीजोमेट्रिक ड्रॉप है, पीजोमीटर में कितना ड्रॉप आया, ठीक है। अगर इंक्लाइन हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हम तो पीजोमीटर को लेकर हम समझ के चल पड़ेंगे। क्लियर गाइस? तो इट इज पीजोमेट्रिक ड्रॉप, कि आपके पास यहाँ पर एक पाइप है, उस पर पीजोमेट्रिक लेवल कुछ है, बाद में कुछ है, तो कितना ड्रॉप किया इन अ हेड, ये आपको फॉर्मूला ये दे देगा। क्लियर? Yes, sir. यस गाइस, चले आगे। इस फॉर्मूला को याद रखना, और ये फॉर्मूला का नाम जरूर याद रखना, हाइगन-पॉइज़न इक्वेशन। चलो, नेक्स्ट वी हैव is the point where u average is equal to u। कौन से पॉइंट होगा जहां पर मेरा u एवरेज बनेगा, वो आपके बेसिकली u के बराबर बन जाएगा। अब u एवरेज का हमको फॉर्मूला पता है, -1/8 न्यू कर्ल p बाय कर्ल x कैपिटल R स्क्वायर, एंड u का फॉर्मूला हमको पता है, -1/4 न्यू कर्ल p बाय कर्ल x कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज पहले कटती है हम उसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, ठीक है, ओके। 1/8 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको भी काट के आपने 2 कर दिया, इसको भी काट के आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और आपको स्मॉल आर ही फाइंड करना है, दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। तो आप इसको निकाल लीजिए, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय √2 which is equal to 0.707 times of capital R, ठीक है, 0.707 times of capital R। तो जब आपका स्मॉल रेडियस इसके बराबर होगा 0.707 times the capital R, at that very particular you can say the point average velocity will be equal to the actual velocity, ठीक है, मींस अगर मैं डायग्राम की हेल्प से समझूं, like this we have this diagram and here we have the velocity distribution, ठीक है, दिस इज माई सेंटर, सेंटर पर मुझे पता है मेरे को क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, लेकिन जिस तरीके से मैं मूव करता हूँ सेंटर से टुवर्ड द बाउंड्रीज, माय वेलोसिटी सिंपली रिड्यूसेस, तो मैं कितना मूव करूँ तब जाके मुझे अब दोनों वेलोसिटी जो है वो आपके एक्चुअल के बराबर मिल जाए। तो ये कितना हम साइड को मूव कर रहे हैं जिस पे जाके मुझे अपनी बेसिकली एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ये सिंपल ये आपको कहते बताता है कि मैं साइड में कितना मूव करूँ कि वहां पर मेरे को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, and that R is equal to 0.707 times of capital R, ठीक है, क्लियर गाइस। तो ये आपको क्या देगा, दिस बेसिकली गिव यू एवरेज वेलोसिटी, यू एवरेज, क्लियर। एवरेज वेलोसिटी कहां पर है ये आपको बता रहा है, अगर हम लोग सेंटर से 0.707 टाइम R पे जाते हैं देन यू विल गेट बेसिकली एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। ठीक है, चले आगे। चलो, नेक्स्ट वी हैव इज पावर रिक्वायर्ड टू पंप वाटर, पावर रिक्वायर्ड टू पंप। अब देखो आपके पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, सिंपल वी हैव हॉरिजॉन्टल पाइप, और यहाँ पर क्या है मेरा एक पंप है, ठीक है, दिस इज माय एनी पंप। अब हॉरिजॉन्टल पाइप की एक लेंथ है L, इस हॉरिजॉन्टल पाइप पे हेड लॉस हो रहा है, यस और नो, वेयर द हेड लॉस इज इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल पाइप और नॉट, यस गाइस, हेड लॉस है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर, नो, व्हाई देयर विल नॉट बी एनी हेड लॉस, फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा क्या, विस्कस लॉस फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा क्या, हॉरिजॉन्टल है तो क्या हुआ, फ्रिक्शन लॉस तो होगा ना, प्रेशर ड्रॉप करेगा नहीं करेगा, करेगा। अभी आपने पीछे उसका फॉर्मूला भी देखा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर ये उसका फॉर्मूला है, सिंपली हाइगन-पॉसली मींस ये विल बी बेसिकली हेड लॉस, ये क्या है, दिस इज HL, हेड लॉस। हेड लॉस आपके पास है इवन दो इट इज हॉरिजॉन्टल पाइप, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल पाइप में कहते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर विल बी हेड लॉस। इसका मतलब क्या है कि अब पानी को मूव करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी कौन देता है, वो आपको देगा पंप। अब वो पूछ रहा है कि पंप की पावर कितनी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू पंप द वाटर दैट वी हैव इज गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू या गामा कोई भी आप लिक्विड यूज करते हो तो उसका आपको बेसिकली गामा यूज करना है, ठीक है, क्यू डिस्चार्ज कितना है एंड देन वी हैव इज हेड लॉस। इस फॉर्मूला को आप गान बांध के याद कर लेना, ये और भी जगह यूज आ सकता है, ठीक है। गामा डब्ल्यू मींस लिक्विड जो आप लोग लेके जा रहे हो उसके ही गामा, गामा डब्ल्यू मत करिए, आप सिंपल से गामा ही कर लीजिए, ठीक है, जो आप लिक्विड लेके जा रहे हो चाहे वाटर है ऑयल है कुछ भी है उसकी आपके पास यूनिट वेट, क्यू बेसिकली इज द डिस्चार्ज एंड HL सिंपली मींस बेसिकली इज हेड लॉस, ठीक है, हेड लॉस तो आपके पास मिलता है ड्यू टू फ्रिक्शन।
अगर इंक्लाइंड है तो वहां पर थोड़ा ज्यादा हेड लॉस हो जाता है ड्यू टू बेसिकली हेड जनरेटेड ड्यू टू डिक्लाइन नेचर, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल तो ये तो आपको मिलेगा मिलेगा। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, दैट यू शुड बेसिकली नो। क्लियर गाइस? चलिए आगे। अब हेड लॉस का हमें पता है दिस इज मेनली इन केस ऑफ द विस्कस फ्लो, मेनली हेड लॉस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। आपको याद है कहते क्या कि फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने कहते किया तो नहीं, वैसे फिर भी किसको याद हो तो फ्रिक्शनल लॉसेस का FLV फॉर्मूला square upon 2GD एफ डैश एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय upon 2GD. 2 ठीक है। एफ डैश इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शन फैक्टर। और यहां पर हमने एज पर हाइगेन्स पॉइसन इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन नोन एज डार्सी इक्वेशन, डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन, ठीक है ना। हम इसको बाद में करेंगे डिस्कस इन केस ऑफ ओपन, इन केस ऑफ द फ्लो थ्रू पाइप्स। बट अभी देखिए एफ डैश एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GD, दिस इज इक्वल टू हेड लॉस जो हमने अभी यहां पर कैलकुलेट किया, दैट इज 32 न्यू यू बार एल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो जी डी, ठीक है, 32 न्यू यू बार एल डिवाइडेड बाय रो जी डी, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहली बात एल से आपका एल कटा, ये वेलोसिटी जो है ये एवरेज वेलोसिटी ही है, ठीक है ना, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी से एक ये वाली वेलोसिटी आपकी कट गई, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है ये आपकी एवरेज वेलोसिटी ही है, ठीक है, राइट। नीचे आपके पास डायमीटर से आपका डायमीटर कट गया, जी से आपका जी कट गया, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, दैट इज एफ डैश into velocity, f dash into velocity divided by 2 is equal to 32 new bar 32 new sorry 32 new divided by rho। f dash क्या मिल गया आपको अपना, f dash is equal to 64 न्यू, एक डी बचा है ना, रो जी डी, ये डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर, ठीक है, दैट वाज डी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे पर डी है कभी, न्यू डिवाइडेड बाय रो डी वेलोसिटी। तो ये अंदर वाला पार्ट आपको क्या मिल गया, ये वाला पार्ट क्या है, ये Reynolds number, sir. this is a Reynolds number, ठीक है। So it means that friction factor is equal to 64 divided by Reynolds number, ठीक है। ये आपको याद रखनी है इन केस ऑफ लैमिनर फ्लो, फ्रिक्शन फैक्टर का आप जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना, दिस इज ओनली फॉर लैमिनर फ्लो, हमेशा नहीं। टर्बुलेंट में तो बड़े ऐसे गंदे गंदे से फॉर्मूला है, लेकिन लैमिनर में एक सिंपल एक ही फॉर्मूला आपको है, वो आपको याद रखना है, फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर गाइस? यहाँ तक जो किया उसमें डाउट? इन सबको जितने भी जो हमने फॉर्मूला पे डिस्कस किए, इन सबको अपनी बुकलेट में एक सिंपल एक कहते पेज पे लिख लेना, एक बाय एक करके, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? चलें आगे। Yes, sir. चलो, नेक्स्ट वी हैव राइट डाउन, दिस इज ऑल विद सर्कुलर पाइप। नेक्स्ट वी हैव इज फ्लो थ्रू, और वी कैन से लैमिनर फ्लो थ्रू, laminar flow between two parallel plates, between two parallel plates, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले हमारे पास आता है अपना shear stress distribution। First one we have is shear stress distribution, that is the tau is equal to minus 1 by 2 curl P by curl X is equal to the T minus 2y, ठीक है, minus 1 by 2 curl P by curl X
t minus 2y, that we have a shear stress distribution. Then we have is the velocity distribution, that u is equal to minus 1 by 2 nu curl p by curl x, your ty minus y square, ty minus y square. Again this is parabolic variation, ऊपर वाली लीनियर वेरिएशन ही है, पैराबोलिक वेरिएशन, ये आपको पता ही है, सेम वैसे आपके डायग्राम इसमें बन जाएंगे, ठीक है, राइट गाइस. नेक्स्ट वी हैव इज एवरेज, next we have is average velocity, which is minus 1 by 12 nu curl p by curl x into t square, that we have is average velocity. Then is maximum velocity, t is thickness, I will let you know क्या है थी यहाँ पर. Then we have is maximum velocity, that is minus 1 by 8 nu curl p by curl x into t square, ठीक है. That we have with maximum velocity, वो तो आप ऊपर यहाँ पर इसी को पुट करके आप लोग निकाल सकते हो कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, ठीक है. और एक आपके पास आता है इसमें कि u max और u average में कितना रेशियो है. दिस इज एक्चुअली 1.5, हियर इट इज 1.5 नॉट द 2, ठीक है. यहाँ पर कितना 1.5 है, u max और u average के बीच का कितना रेशियो है, दैट इज इक्वल टू 1.5. अब ये कहते हैं t क्या है इसके अंदर, y क्या है, t क्या है. लाइक दिस इज माय प्लेट, सर्कुलर प्लेट, ठीक है. इनके बीच में जो स्पेसिंग है सर्कुलर प्लेट के बीच में, दैट इज द t, ठीक है. और y क्या है, कोई भी लेयर उसका डिस्टेंस बॉटम से, ये y है, सेंटर से नहीं, ठीक है, सेंटर से नहीं, निचली वाली लेयर से कितना है, निचली या ऊपर से, वैसे हम डेरिवेशन हम लोग निचली वाली से करते हैं, ठीक है. तो y क्या है कि कोई भी आपके फ्लूइड की लेयर है उसका कितना, मतलब डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम द प्लेट, तो आपको वहां से याद रखना है. क्लियर. तो टी वाई आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, कोई डाउट इसमें. एंड एट लास्ट वी हैव is the drop in the pressure head, that is equal to 12 nu u bar L divided by rho g t square, ठीक है. ये आपको याद रखनी है. एक मिनट, क्या भी हो गया, दिख रहा है क्या आपको पेज? अब ठीक है, ओके. Right, so this we have is now flow through these pipes. एक मिनट देख लीजिए, डाउट है तो पूछिए. चलिए आगे. ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले वाले फॉर्मूला हैं, जितना हमने पहले डिस्कस किया, दोज आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. यस, आवर फ्रिक्शन फैक्टर विल रिमेन सेम, वो सेम यही फॉर्मूला आएंगे फ्रिक्शन फैक्टर में भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. एक मिनट आप करके देखना क्या आएगा आंसर फ्रिक्शन फैक्टर का. आपके पास कहते प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला है और वहां से वो दूसरा वाला फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से सेम नहीं आएगा. एक मिनट आप लोग अपनी हैंड पे करके देखना फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है. चलो, अब इसमें एक आता है स्पेशल केस नहीं आता है. वी हैव बेसिकली इज द क्वाइटे फ्लो. दिस इज बेसिकली अ स्पेशल केस, इसी का स्पेशल केस है.
दैट वी हैव इज अ क्वाइटर फ्लो। इस केस में क्या होता है, हमारी जो ऊपर वाली प्लेट है वो आपकी मूव करने लग जाती है, लाइक दिस। ये ऊपर वाली प्लेट थी, ऊपर वाली या नीचे वाली कोई भी हो सकती है, वो आपकी मूव करनी शुरू कर देती है। दैट इज नोन एज अ क्वाइटर फ्लो। सेम वही है, वी हैव बॉटम प्लेट जो कि आपके पास स्टेशनरी है, ठीक है। ऊपर वाली प्लेट क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी v। दैट टाइप ऑफ द फ्लो इज नोन एज अ क्वाइटर फ्लो। इसमें आपको बस इसका यही याद रखना है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास, -1/2 न्यू कर्ल p बाय कर्ल x टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो, अगर तो आपका पानी की डायरेक्शन में ही मूव करता है, कहते प्लेट लाइक दिस, कि जो कहते पानी है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड द प्लेट इज आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो आपको करना है ऐड, आपको करना है ऐड, दैट इज v डिवाइडेड बाय t इनटू y। y क्या है, वही लेयर जहां पर आप कुछ अपनी वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो। अगर उल्टा होता तो आप उसको बेसिकली नेगेटिव कर देते, तो आप इसका क्या करेंगे, कहते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है आपका कहते प्लेट भी, तो आपको करना है ऐड। अदरवाइज आपको अगर उल्टा जा है तो आपको करना उस केस में नेगेटिव, तो आपको करना उस केस में नेगेटिव, ठीक है। बाकी आगे तक सारा सेम है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज बेसिकली सेम, ठीक है। सिमिलरली फॉर द शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस में भी क्या हमने पढ़ा, उसमें भी आपके पास पहले तक तो सेम ही है, दैट इज -1/2 कर्ल p बाय कर्ल x, ठीक है। देन t-2y। इसमें भी आपको क्या करना है, न्यू विस्कोसिटी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t, ठीक है। t मींस थिकनेस, इट इज बेसिकली कैपिटल वेलोसिटी, ठीक है, जो मूव कर रहे हैं आपको ऊपर, ठीक है। दैट इज शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस आप वहीं से निकालते हो, दैट शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू न्यू du बाय dy। इसको आपने वहीं से फाइंड किया, तो u हमारे पास क्या है, दैट इज v एंड dy इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट। क्लियर? These are all things that you guys need to understand. अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, चले आगे। Yes guys, Yes, sir. okay, give me 1 minute just, देख लूं क्वेश्चन कौन सा कराना है। चलो लिखिए, an oil of viscosity 9, an oil of viscosity 9 poise, an oil of viscosity 9 poise and specific gravity 0.9 and specific gravity 0.9 and specific gravity 0.9 is flowing through is flowing through a horizontal pipe of 60 mm diameter, is flowing through a horizontal pipe of 60 mm diameter, full stop. If the pressure drop in 100-meter length of the pipe, if the pressure drop in 100-meter length of the pipe is 1800 kilonewton per meter square,
if the pressure drop in 100-meter length of the pipe is 1800 kilonewton per meter square, comma, determine first part, the rate of flow of oil. First part, the rate of flow of oil. Second part, the centerline velocity. Second part, the centerline velocity. Third part, the total frictional drag over 100-meter length. Third part, the total frictional drag over 100-meter length. Fourth part, the power required to maintain the flow. Fourth part, the power required to maintain the flow. Fifth part, the velocity gradient at the pipe wall. The velocity gradient at the pipe wall. The velocity gradient at the pipe wall. And sixth part, the velocity and shear stress at 8 millimeter from the wall. At 8 millimeter from the wall. ठीक है, लिख लिया सबने? Yes guys, लिख लिए? Yes, sir. चलो शुरू करते हैं इसको हम लोग. एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल से सब कुछ ही कवर हो गया इसमें. ठीक है, दे आर सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 9 points. ठीक है, वी हैव अ ऑयल of specific gravity of basically viscosity 9 points, that is 0.9 Newton second per meter square, and they mentioned that the specific gravity is equal to 0.9. ठीक है, specific gravity आपको दे रखी है and ये move कर रहा है through the horizontal pipe of 60 millimeter diameter. ठीक है, so dia of pipe is given as 60 millimeter and we have horizontal pipe like this. ठीक है, whose diameter is given as 60 millimeter. ठीक है, and we have the pressure drop in 100-meter length. ठीक है, तो length of the pipe is given to you as 100 meter and the pressure drop in this very particular case, that is pressure drop. ठीक है, and he is saying that the pressure drop is equal to 1800 kilonewton per meter square. ठीक है, this is the data which is actually given to you. अब इस केस के अंदर सबसे पहले तो क्या करना है आपको, सबसे पहला पार्ट वो क्या पूछ रहा है, that we need to find basically rate of flow, that is discharge. अब बताइए डिस्चार्ज कहां से आ सकता है? Area into velocity. वेलोसिटी है guys, वेलोसिटी है, प्रेशर ड्रॉप की फॉर्मूला से आएगा. प्रेशर ड्रॉप फॉर्मूला से आएगा. ठीक है, so we have the pressure drop which is P1 minus P2 and what was that, 32 nu U bar L divided by D square. सब कुछ तो आपके पास इस केस के अंदर है. 1800 किलो न्यूटन है into 10 raised to power 3 कर दीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, 32
डायनामिक विस्कोसिटी आपके पास है 0.9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहां से आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। लेंथ कितने के पीछे था ये? 100 मीटर। एंड डायमीटर इज 60 mm, दैट इज 0.06 मीटर्स उसका स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड करिए यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है। यस गाइस, देखिए कितनी आ रही है। तो 2.25। 2.25, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी निकल के आई, दैट वाज 2.25। और रिमेंबर दैट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिस्चार्ज आपको एवरेज वेलोसिटी ही यूज करनी है, मैक्सिमम यूज नहीं करनी, ठीक है ना। तो क्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी। एरिया आप लोग निकाल सकते हो, पाई डाया 0.6 स्क्वायर बाय 4 इनटू एवरेज वेलोसिटी 2.25। तो कैन बी फाइंड नाउ डिस्चार्ज। देखिए डिस्चार्ज कितना आ रहा है। डिस्चार्जेस एवरेज की फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यू एवरेज करके देखिए, वो भी हम देखते हैं करके वहां पर क्या इशू आ रहा है, हम देखते हैं इशू वो भी करके। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका डिस्चार्ज? 6.36 6.36 क्या? into 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, 6.36 इंटू 10 Sir, रेज़ टू पावर 0.006. -3 मीटर क्यूब पर सेकंड, और कैन से 6.6 0.006. लीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके गाइस, दिस इज अ वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट बेसिकली चार्ज। अब एक में यहाँ पर ऋषि ने पूछा कि वाई वी कांट यूज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज कर लें। फॉर्मूला क्या था? माइनस न्यू डिवाइडेड बाय -1/8 न्यू कर्ल पी बाय कर्ल एक्स कैपिटल आर से। ठीक है, करके देखिए फॉर्मूला से भी। -1/8 न्यू, न्यू आपका कितना है दिया हुआ है? 0.9। अब कर्ल पी क्या होता है? यस, व्हाट इज कर्ल पी? दैट इज P2 माइनस P1, यही होता है कर्ल पी, P2 माइनस P1। बट आपको पेपर में जो, सॉरी, आपको जो कहते क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है? कहते P1 माइनस P2, दिस इज P1 माइनस P2 प्रेशर ड्रॉप। ठीक है ना, P1 माइनस P2, बट आपको क्या फाइंड करना है? द चेंज इन द प्रेशर दैट इज इक्वल टू द P2 माइनस P1। तो आपको क्या बन जाएगा? ये -1800 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों लगाया, समझ में आया ना? एक तो माइनस पहले से लगा हुआ है और एक आपने बाद में खुद से लगाया क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है? P2 माइनस P1 फाइंड करना है, ना कि कहते P1 माइनस P2। तो -1800 इंटू 10⁻³ गाइस, समझ आया ना नेगेटिव क्यों लगाया है इधर? Yes, sir. ठीक है, डिवाइडेड बाय आर एक्स, एक्स आपके पास 100 है, इनटू आर स्क्वायर। अब आर इज हियर द 30, आर इज 30 मिलीमीटर। कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग मीटर्स में, 0.03 स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां से यू बार निकल के कितना आता है? क्या सेम है? Yes guys, whether you're getting same answer? Yes, 2.25। ठीक है, तो आपको यहां से भी सेम आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, 2.25 मीटर पर सेकेंड। बस याद रखना आपको यहाँ पर नेगेटिव पुट करना है, उस चीज को गलत मत करता ना, अदरवाइज आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। कोई नेगेटिव में क्यों आ रहा है? ठीक है गाइस, आप प्रेशर ड्रॉप से भी निकाल सकते हो, यू कैन यूज बेसिकली डायरेक्टली, बेसिकली सेम ही है। यहाँ पर भी तो आपने यूज ही किया ना, कहते प्रेशर ड्रॉप, फॉर्मुला इज सेम, उस तरह उसका बस मॉडिफाइड वर्जन है और कुछ नहीं उसके अंदर। प्रेशर ड्रॉप ही आप यहाँ पर भी लेके चल रहे हो। क्लियर? चले आगे नेक्स्ट पार्ट में। यस, Yes, sir. चलो
नेक्स्ट पार्ट क्या है उसके अंदर, दे आर सेइंग सेंटर लाइन वेलोसिटी. नेक्स्ट इज दे आर सेइंग बेसिकली सेंटर लाइन वेलोसिटी. ठीक है, ओके. There is no rho g in denominator of pressure drop. That is basically the pressure drop. Head loss नहीं देख रहा मैं राहुल. That is the pressure drop, ना कि head drop. Clear? Head drop नहीं मैंने लिया. Pressure drop आपको दिया गया था. Clear? Now we have to find next center line velocity. Center line velocity कैसे निकल सकती है? The U max. हाँ, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला है ना सर. फॉर्मूला है, जरूरत है फॉर्मूला यूज करने की? नहीं सर, रेशियो से भी निकाल सकते हैं. Actually, you have ratio. U max by U bar is equal to 2. आपके पास U bar तो आपने अभी फाइंड कर ही लिया, ठीक है ना? तो it is 2 times of 2.25. कितना आ गया ये? That is 4.5. ठीक है ना? तो U max is equal to 4.5. फॉर्मूला भी करते तो भी आंसर यही निकल के आता है, बट क्यों करना है उसको? सब हमें पता ही है कि रेशियो कितना होता है इन केस लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप. क्लियर गाइस? यस और नो? Yes, sir. चलो, अगला थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज सेइंग दैट टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग ओवर 100 मीटर लेंथ. टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग ओवर 100 मीटर लेंथ. इसमें सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है? इफ यू वांट टू फाइंड द फोर्स, फ्रिक्शनल ड्रैग मींस यू वांट टू फाइंड द फोर्स बेसिकली, दैट बेसिकली इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? वॉल शियर स्ट्रेस. आपको निकालना है वॉल शियर स्ट्रेस और आपको मल्टीप्लाई कर देना है शियर एरिया से. ऐसे ही करेंगे हम लोग. पहले वॉल शियर स्ट्रेस फाइंड करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे शियर एरिया से. तो देखिए आपके पास शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेस? हमें लिखा होगा स्टार्टिंग में उसको. -1/2 curl dp by dt. हाँ, -1/2. ये देखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेस. ठीक है, माइनस Curl कर्ल p by curl x. माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स into r by 2. That is basically formula for shear stress. अगर आपको फाइंड करनी है वॉल पे, वॉल मतलब बाउंड्री पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर टाउ नॉट आपको अपनी r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? दैट इज कैपिटल R. एंड कैपिटल R हमें कितना दिया हुआ है? 0.03 मीटर्स. क्लियर? तो सबसे पहले आ जाइए माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स के ऊपर. माइनस कर्ल पी. अब कर्ल पी की वैल्यू क्या है? यस गाइस, कर्ल पी की वैल्यू क्या है? -1800. वेरी गुड. माइनस पुट कर देना, ठीक है, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एक तो माइनस आपका पहले से ही है और एक आपका माइनस बाद में भी आ जाएगा, तो हो जाएगा ऐड 1800 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कर्ल पी बाय कर्ल एक्स करना था, डिवाइडेड बाय 100 इंटू r by 2. r is 0.03 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है आपका आंसर. टाउ नॉट निकल कितना आ रहा है? Yes guys, what is the value of the tau naught? 270 270 units न्यूटन per meter square. Newton per meter square. Okay. This we have is the wall shear stress. Now after getting the wall shear stress, can we find total the frictional drag? ठीक है ना? टाउ नॉट तो है ही हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर देना विद सरफेस एरिया, दैट इज पाई डी एल. तो 270 इंटू पाई डी इज, एक मिनट जरा, डी इज कितना? 0.06 एंड एल इज 100. तो देखो कितना आ रहा है? D is 0.06, L is 100. ठीक है, तो it is coming out to be 50
89 न्यूटन, ठीक है, दैट इज बेसिकली आंसर, टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग। यहाँ तक डाउट किसी को नहीं समझ आया ना कैसे लिखा है पाइडियल? सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस एरिया, ठीक है। सर ये जो फ्रिक्शनल ड्रैग है ना, हम्म, सर ये टाउ नॉट क्यों हम फाइंड करते हैं इसमें? क्योंकि हम लोग बाउंड्री के ऊपर निकाल रहे हैं ना फ्रिक्शन, टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग ओके ओके, ओवर बाउंड्री पे 90 लगे। 100 मीटर, ठीक है बाउंड्री पे ही लगेगी फ्रिक्शन, सर, फाइन ठीक है। फाइन। कैसे, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? यस कैसे, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? सर ये जो फ्रिक्शनल ड्रैग हमने निकाला ना, एक बार फिर से बताइए सर प्लीज। ओके, फ्रिक्शनल ड्रैग में क्या था, हमको सबसे पहले फ्रिक्शनल ड्रैग इज बेसिकली द फोर्स, ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस भी कहाँ पर, वॉल के ऊपर, ठीक है, शियर स्ट्रेस भी कहाँ पर, वॉल के ऊपर, दिस इज बेसिकली द वॉल शियर स्ट्रेस, वॉल शियर स्ट्रेस, उसको आपने मल्टीप्लाई किया बाद में शियर एरिया से, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द फोर्स, इट मींस दैट वी नीड टू बेसिकली मल्टीप्लाई द स्ट्रेस विद एरिया, ठीक है। अब आपने कहते शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द शियर स्ट्रेस, दैट इज द टाउ इनटू माइनस कहते कर्ल p डिवाइडेड बाय कर्ल x इनटू r/2, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड करना है वॉल के ऊपर, तो वॉल के ऊपर आपको ये जो r की वैल्यू है वो कितनी पुट करनी है, 0.03 मीटर्स, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए आपको कर्ल p बाय कर्ल x आपको दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी, कर्ल p इज जस्ट बेसिकली गिवन टू यू, दैट इज 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको आपने यहाँ ठीक है पर सर, क्या किया, बाकी तो कैसे पुट समझ किया, आ गया। ठीक बाकी है समझ सर, आ गया, थैंक यू। दैट वी हैव जी इज जी, x, दिस इज r, क्लियर, थैंक यू। ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट नाउ? फोर्थ पॉइंट पे पहुंच गए ना, हाँ, पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो, नेक्स्ट इज पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो, कैसे फाइंड करेंगे पावर रिक्वायर्ड? गामा QH गामा क्यू एच एल, गामा क्यू एच एल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एच एल निकालना है, एच एल क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी, है ना, दैट इज बेसिकली एच एल। अब P1 आपको पता है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1800 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय रो जी। अब इसमें वाटर मूव कर रहा है नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज बेसिकली लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट 0.9 इंटू 9810, ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एच एल। फाइनली इफ यू वांट टू फाइंड पावर लॉस, पावर रिक्वायर्ड, दैट विल बी इक्वल टू गामा, now gamma is 0.9 into 9810 into Q, डिस्चार्ज आप पहले फाइंड कर चुके हो, 6 पॉइंट कितना था डिस्चार्ज आपका, 6.36 into 10 raised to power minus 3 meter cube per second into HL, that is 1800 into 10 raised to power 3 divided by rho g, ठीक है, 9810 में आपको कट जाएगा, तो फाइनली वी हैव, सारा ही कट गया है तो, है ना, हाँ, देखो कितना आपका आ गया ये पावर, सी पावर, यस गाइस, कितनी बार मिल रही है आपको? वन वन 448 यूनिट्स इसके, दैट विल बी इन द watts, clear, or you can say that power is equal to 11.448 kilowatts, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली पावर रिक्वायर्ड और पावर लॉस जो भी है, क्लियर गाइस, यहाँ तो डाउट कोई?
चलें आगे। यस सर। चलो, नेक्स्ट वी हैव इज फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट एट पाइप वॉल। कैसे फाइंड करोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट को? यस गाइस, हाउ कैन यू फाइंड वेलोसिटी ग्रेडियंट? वो भी कहते हैं पाइप वॉल के ऊपर, एट वॉल। u square divided by 2g। ओके, और we know that shear stress is equal to nu du by dy। yes or no? आपको ये du by dy फाइंड करना है, वो भी कहां पर? पाइप की वॉल के ऊपर। इट मींस दैट आपको shear stress कौन सा यूज करना है? वॉल shear stress, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय न्यू, सिंपल, du by dy। टाउ नॉट आप लोग पहले निकाल चुके हो, अभी आपने फाइंड किया टाउ नॉट की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ टाउ नॉट इज इक्वल टू 270 270 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यू आपको पता है 0.9, निकल जाएगा du by dy। यस और नो? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर 300 कितना आ रहा है? 300, ठीक है, 300 पर सेकंड। इसका एक और वे भी होता है निकालने का, अगर बाई चांस किसी के माइंड में ही ना आए। दूसरा वे क्या है? यू हैव वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, -1/4 न्यू कर्ल पी बाय कर्ल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसकी खुद से डिफरेंशिएट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। y से डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या करिए, अपने y को 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट कि मेथड कटिए, बट किसको अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो ज्यादा सिंपल है। वॉल शियर आपके पास है, वॉल शियर स्ट्रेस को आप लोग डिवाइड करेंगे सिंपली न्यू से, यू विल गेट बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलो, लास्ट पार्ट, that is sixth part of this question. You're saying that velocity and shear stress at 8 millimeter from the pipe wall. Velocity and shear stress at 8 millimeter from the pipe wall. अब सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। अपना वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला सिंपल पता ही है, अभी लिखा था मैंने ऊपर, -1/4 न्यू कर्ल पी बाय कर्ल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी एट what distance? at 8 millimeter from the pipe wall। याद रखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, from pipe wall, सेंटर से नहीं, 8 मिलीमीटर फ्रॉम पाइप वॉल, तो सेंटर से स्मॉल उसका आर आ आर जाएगा। कितना होगा? उसका आर कितना होगा? आपको क्वेश्चन में आर यूज करना है, दैट इज बेसिकली रेडियस, ना कि मतलब नीचे से। आर विल बी 22। yes or no? getting my point or not? आपको दिया हुआ 8 मिलीमीटर फ्रॉम द पाइप वॉल, नॉट फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से फाइंड करने के लिए आपको सिंपली रेडियस निकालना है, दैट इज बेसिकली 30 माइनस 8, दैट इज 22। क्लियर गाइस? यस और नो? बोलो भाई। यस सर। चलो, तो यू आपको निकालना है, आर 22 मिलीमीटर के ऊपर, -1/4 न्यू 0.9 कर्ल पी बाई कर्ल हमने अभी देख ही लिया, -1800 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज 100 इंटू कैपिटल आर 30.03 स्क्वायर माइनस 0.022 स्क्वायर, ठीक है। तो यू आपका निकल जाएगा, कितना आ रहा है यू? हाँ जी, कितना आ रहा है यू?
So 2.08. 2.08 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव शियर स्ट्रेस, वो भी आपको ऐसी फॉर्मूला से निकाल देना है, माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स r by 2, सब कुछ आपके पास है ही अब, दैट इज 1800 into 10 raised to power 3 divided by 100, r is 0.022 divided by 2, देख लो कितना आ रहा है शियर स्ट्रेस। सिक्स पार्ट रिपीट देखता हूँ, कर देता हूँ रिपीट अभी। अक्षत एक मिनट रुकिए। यस गाइस, कितना आ रहा है शियर स्ट्रेस? So 198. 198 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अक्षय देखो, लास्ट पार्ट में आपको पूछा उसने दैट यू नीड टू बेसिकली फाइंड द वेलोसिटी एट y is equal to 0 at basically y is equal to 8 मिलीमीटर। y का मतलब क्या था? दैट इज आपको उसने बाउंड्री से दिया हुआ था, ये आपकी पाइप थी, ये आपकी सेंटर लाइन है, वो बोल रहा था कि मेरे को इस पॉइंट पे फाइंड करनी है वेलोसिटी एंड द शियर स्ट्रेस एंड दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ 8 मिलीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री। लेकिन मेरे फॉर्मूला में हम लोग जो है वो r यूज करते हैं, दैट इज रेडियस, ठीक है ना, इसीलिए मेरे को उसको सेंटर से फाइंड करना था। तो डायरेक्टली किसी ने भी वहां पर गलत नहीं पुट कर देना अगर पेपर में आ जाए तो, ठीक है। तो दैट बेसिकली 22 मिलीमीटर आपको ये लेके चलना है, ना कि 8 मिलीमीटर। तो बाकी तो सिंपल ही है, आपके पास फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला में डिस्कस कर रखे हैं वेलोसिटी के भी क्या है फॉर्मूला है, एंड देन वी हैव फॉर्मूला फॉर द शियर स्ट्रेस आल्सो। फॉर्मूला में जाइए, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर गाइस? मुझे एक मिनट दीजिए, कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ। जिस तरीके से आपने ये किया, इसी सेम तरीके से आप लोग अपने कहते पाइप वाले फॉर्मूला भी कर सकते हो, सॉरी कहते प्लेट वाले, ठीक है, वो भी आपने कर लेने, उसमें कुछ अलग से नहीं है, फॉर्मूला में फर्क है बस। इफ यू नो हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देन डेफिनेटली यू कैन कवर दोस क्वेश्चंस। बाउंड्री लेयर डिस्कस फ्लो, एक मिनट दीजिए बस। Write down question. Write down. In a 4 centimeter diameter pipeline, carrying laminar flow of a liquid, of viscosity 1.6 centipoise, of viscosity 1.6 centipoise, the velocity at the axis is 2 meter per second. The velocity at axis is 2 meter per second. Full stop. What is shear stress midway? What is shear stress midway between the wall and the axis? What is the shear stress midway between the wall and the axis? ठीक है, तो क्या है? We have basically diameter of 4 centimeter, ठीक है, we have a laminar flow and viscosity आपको दे रखी है 1.6 centipoise. Centipoise. He is saying that velocity at axis, that basically means u max is given to you 2 meter per second. तो आपको फाइंड क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पाइपलाइन, ठीक है, ये उसकी सेंटर लाइन, ठीक है, आपको अपनी शियर स्ट्रेस फाइंड करना है
मिडवे बिटवीन द एक्सिस एंड द बाउंड्री, मतलब एग्जैक्टली मिडवे इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट पे तो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, हरे रंग से। ऑप्शंस आपको दे रखी हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। ये बिना कैलकुलेटर से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन 0.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन 0.0125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 0.0175 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन 0.02। ठीक है, करिए क्वेश्चन सॉल्व। यू हैव 5 मिनट्स, क्वेश्चन सॉल्व करिए। हुआ क्वेश्चन सॉल्व? शियर स्ट्रेस निकालना आदिल। नीड टू फाइंड शियर स्ट्रेस at midway between the axis and the pipe. क्वेश्चन भी वो चूज किया जिसका आंसर ही मैच नहीं करता। किसी का आ रहा आंसर? Yes guys, anyone getting answer? समझ आ रहा है क्वेश्चन करना कैसे है? हरी अप प्लीज। बी। ओके, एक लाख क्या चाहिए क्वेश्चन सॉल्व? सर यू मैक्स का फॉर्मूला लगाया 1/4 म्यू डी कर्ल पी बाय कर्ल एक्स आर स्क्वायर। सर यू मैक्स भी दिया है सर, म्यू भी दिया है सर, उधर से निकाला कर्ल पी बाय कर्ल एक्स। ओके सर फिर वो टो में पुट किया सर, टो इक्वल टू माइनस डी कर्ल बाय ये और इनटू आर बाय 2 सर। देखते हैं आपने जो किया पहले वो देखते हैं। ठीक है, आपने किया फॉर्मूला यूज किया किसका? यू मैक्स का। यू मैक्स ठीक है, 1/8 न्यू माइनस 1/4 म्यू। 4 होता है 8 होता है? अच्छा 4 ही है, ठीक है 4 है। 1/4 1/4 न्यू कर्ल पी बाय कर्ल एक्स आर स्क्वायर, राइट? यही किया आपने यूज फॉर्मूला। यस 2 मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी माइनस 1/4 न्यू। न्यू क्या पुट किया? सर देख रहे 1.6। 1.6 ही पुट कर दिया? नो सर सर इसको 70 सॉल्व पॉइंट में दिया चेंज ना, चेंज किया।
क्या लिखा आपने, वो तो पूछ रहा हूँ। सर इनटू 100 twice -2 twice 1.6, ठीक है, यस डिवाइड बाय -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर। 0.00 यही पुट किया था हमने, ऐसे ही किया था पुट न्यू की वैल्यू। यस सर चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज न्यू आपने पुट किया 1.6 0.0016 1.6 into 10 raised to power -3, राइट, ओके। फिर आपने बोला कि कर्ल पी बाय कर्ल एक्स आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, एंड आर की वैल्यू मेरे को दी हुई थी, कितनी दी हुई आर की वैल्यू, 2 सेंटीमीटर, राइट, बिकॉज डायमीटर इज बेसिकली 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे मीटर्स में, उसका 0.02 क्लियर किया। तो कितना आपके पास कर्ल पी बाय कर्ल निकल के आया यहाँ से, 2 into 4 into 1.6 into 10 raised to power -3। यस गाइस, कितना आ रहा आप निकल के बताइए। -32। -32, ठीक है, -32 कर्ल पी बाय कर्ल एक्स। अच्छा, इसके बाद क्या किया, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज कर लिया था, माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स r/2, यही फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स आपको दिया हुआ है, आपने ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर लिया, माइनस माइनस दे विल बी एडिशन 32, और r की वैल्यू आपको दी गई है। अब r आपको कहां पर फाइंड करना, अब देखिए मैंने बोला आपको मिडिल पे फाइंड करना है, तो r कितना आप लेके चलेंगे इस केस के अंदर, यस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट टू 1 सेंटीमीटर, 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2, कितना आया टाउ, यस 1.6, इट विल बी बेसिकली 1.6 आ रहा है, 32 सर इंटू 0.16 आ रहा है। 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इकलाद आपका कैसे आंसर मैच कर गया था, बी वाला आंसर मैंने आप ही के मेथड से किया। मैंने वो जो आपने लिया ना ये आर का वैल्यू, सर मैंने 0.02 लिया था। अच्छा ठीक है, तो गाइस आंसर बेसिकली इज 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप देख रहे हो ऑप्शन में, अरे यार फिर गैप हो गया, एक मिनट, ऑप्शन में कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, बाय डिफॉल्ट मैंने वही क्वेश्चन चूज किया जिसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है पेपर में, बट आंसर कोई मैच में नहीं करता था। टाउ इज इक्वल टू 0.16, ठीक है, ओके, ठीक है, डाउट इसमें, आंसर कोई मैच नहीं करता था इसका, 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर अक्षत, आपने पहले कर लिया था, गुड। एक क्वेश्चन देखें और राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। द प्रेशर ड्रॉप in a 30 centimeter diameter horizontal pipe, the pressure drop in a 30 centimeter diameter horizontal pipe is 60 kilopascals, is 60 kilopascals in a distance of 15 meter, in a distance of 15 meter, ठीक है, the wall shear stress in kilopascals is, the wall shear stress in kilopascals is option सर इन A, डिस्टेंस ऑफ 15 meters, ठीक है, ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन 2 0.2, ऑप्शन 3 0.3, ऑप्शन 4 0.4, ठीक है, किलो पास्कल्स। ओके, सो क्वेश्चन इज दैट द प्रेशर ड्रॉप in 30 centimeter diameter pipe which is horizontal, and they have mentioned that the pressure drop, which is the P1 minus P2, is given to you as 60 kilopascals, right, and that is in distance of
15 मीटर्स। तो आपको फाइंड करना है वॉल शियर स्ट्रेस, टाउ नॉट कितनी होगी। हो जाएगा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करिए फटाफट इसको। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जीरो पॉइंट थ्री, गुड। अब देखो कुछ भी इसमें करने वाला नहीं था, आपको पता है शेयर इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स आर बाय टू। आपको फाइंड करना है वॉल शियर स्ट्रेस, मींस आर की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है। यस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स। वो आपको क्वेश्चन में दिया दे रखा है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 60 किलो पास्कल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 15 मीटर्स। आर रेडियस आपको कितना पुट करना है, दैट इज बेसिकली 0.1552। ठीक है, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 0.3 किलो पास्कल। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट फॉर्मूला पता होगा तो ही निकलेगा। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला को पता रखिएगा, पता होगा तो निकल जाएगा। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया जिसमें ऑलमोस्ट हर तरह का जो भी कहते पॉसिबल क्वेश्चंस थे वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा चैप्टर। ठीक है, फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते, बट आ भी जाए उसमें भी कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है, आपको वे पता है कैसे सॉल्व करना है, जस्ट यू नीड टू गो विद दैट। ठीक है, यस और नो गाइस, विद दिस लैमिनार इज ओवर। टुमारो वी विल डिस्कस टर्बुलेंट फ्लो। गाइस ठीक है, चलो दिस इज ऑल टुडे लेक्चर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक सेकंड वो वाली स्लाइड निकाल दो जिसमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है फॉर फ्लो थ्रू सॉइल। ओके सर, थैंक यू। ओके, यस गाइस, हैव कोई डाउट? चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे, आई एम शटिंग नाउ।